Good morning, students. This is Veer from Saraswati classes, Narol, Ahmedabad. Friends, as you know that in standard 11, chapter number 7 is going on. Name of the chapter is Cash Book. We have studied earlier on simple cash book, two-columnar cash book in which cash and discount, bank and discount, even cash and bank account we have discussed earlier on. Today we are going to take one more step of three-columnar method in which we will draw cash, bank and discount accounts. So without wasting our time, let's start our topic. Question number 8 in your book, standard 11, chapter number 7, cash book. Start with the first topic. Detail is given to you of August 2015. It is given opening cash balance and bank balance is given to you. How much it is given to you? It is 7,000 and 6,000. They both are balanced. So on debit side, to opening balance 7,000 and 6,000 in both of the column respectively. On the very second data, cash purchase and expense of business खर्च है, क्योंकि परचेज करेंगे मतलब मटेरियल तो बिजनेस में आएगा पर साथ में आपका पैसा तो बाहर जाएगा ना, तो इट इज एन एक्सपेंडिचर ऑफ बिजनेस. सो कैश के कॉलम में 6,000 लिखोगे आप बाय परचेज अकाउंट. सेल भी दिया हुआ है तो सेल इज अवर इनकम फ्रॉम द डेबिट साइड, इनकम सेक्शन to sales account 7,000 in cash column. After that, rupees 3,000 is deposited in the bank. Now this is a contra entry. Now friends, what do you mean by contra entry? When you are preparing both cash and bank accounts and of even a single transaction you have to post twice a single entry, then it's known as contra entry. Or simply if I say the transaction which affect cash and bank simultaneously, they are known as contra entries, right? So contra entry में क्या क्या आएगा? When you draw money from bank, right, for business, or when you deposit money in the bank, then also this is also known as contra entry. So what we have done here over here, we have deposited 3,000 rupees. So if you are depositing 3,000 rupees in the bank, the entry will be bank account debited 3,000 rupees, right? So this kind of entry will be solved by doing journal entry. So bank account debited 3,000 rupees. So bank के डेबिट में मैंने 3,000 लिख दिया, लेकिन नाम लिखूंगा मैं कैश का, लिखा सर. और सिंबॉलिक वैल्यू में क्या दिखाऊंगा? C स्टैंड फॉर कॉन्ट्रा. सिमिलरली बैंक अकाउंट डेबिटेड, नाउ कैश अकाउंट क्रेडिटेड, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 3,000 रुपीज इन द नेम ऑफ बैंक अकाउंट. सिंबॉलिक वैल्यू में दे देंगे C फॉर कॉन्ट्रा. ऑलराइट. As more funds are required in the business, a loan of 5,000 taken from Prabhu bearing 8% rate of interest. Now Prabhu is not a bank. This is maybe a friend or a payee, right? So अगर हमने लोन लिया है मतलब पैसा बिजनेस में आ रहा है, राइट, इनकम है. सो लिखो यहाँ पर 8% लोन ऑफ प्रभु अकाउंट, कैश में लिया होगा तो इट विल बी 5,000 एज कैश. आफ्टर दैट, दिस इज नॉट अ बैंक ट्रांजैक्शन, राइट. लोन हमेशा बैंक ही नहीं प्रोवाइड करती है. लोन्स तो हमें हमारे फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स या समवन जो हिसाबी जो पेड़ियाँ होती हैं मार्केट में जो लोन प्रोवाइड करती हैं, व्यापारी पेड़ियाँ, वो हो सकती हैं. सो यहाँ बैंक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए बैंक को नहीं लिखेंगे, बैंक में नहीं लिखेंगे. Goods of 3,000 sold to Mansi at 10% cash discount. Mansi issued a check of necessary amount which is deposited in the same bank. I have explained you earlier on कि अगर हम जिस दिन ट्रांजेक्शन कर रहे हो, जिस दिन सेल हो रही हो, उसी दिन चेक मिले और सेम डे हम चेक को बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो बैंक का ट्रांजेक्शन बन जाएगा. सेल हो रहा है तो लिखा यहाँ सेल अकाउंट. तब 3,000 का था, 10% कैश डिस्काउंट को लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 300. बैंक में डालेंगे 2,700 का चेक. ओके फ्रेंड्स, ऑल राइट. After that, goods of 7,000 purchased from Darviz at 50% of amount immediately paid by cash. Now listen, if we are purchasing goods, that is an expenditure of business, fine, but we are paying only the half amount, 50%. So only 50% amount is to be treated over here. The remaining 50% that is to be shown in journal entry or journal proper. But right now only 3,500 will be shown. So in purchase section, in expenditure,
वी कैन सी 3,500 रुपीज रेस्पेक्टिवली। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। Salary of 3,000, basis 500 and stationery 200 are paid by check. They all are expenses, na? So salary, basis and stationery, in the expense column, and in bank section 3,500 and 200 respectively to be shown in expense column. After that, commission of 1,000 and brokerage of 500 received. If it is received, that is our income. So in income section, commission account and brokerage account, कैश में रिसीव हुआ तो कैश के कॉलम में डाल देंगे। आगे चलते हैं। बैंक क्रेडिट इंटरेस्ट ऑफ 100 रुपीज इन बैंक ऑफ नम्रता। सो बैंक में इंटरेस्ट क्रेडिट किया है ना, तो बैंक के अकाउंट में क्रेडिट हो चुका होगा, तो हम क्या करें, डेबिट कर देंगे। सो वैसे भी हमारी इनकम है तो इनकम सेक्शन दिखा देंगे बैंक के कॉलम में 100 रुपीज बाय द नेम ऑफ बाय टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट। आगे चलते हैं। ₹2,000 विड्रॉन फ्रॉम बैंक इन पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि अगर बिजली का बिल चुकाने के लिए या बिजनेस का कोई भी एक्सपेंडिचर पे करने के लिए बैंक से अगर पेमेंट लेते हैं तो कैश में आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिटेड ऐसा डील करेंगे। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखेंगे 2,000 रुपीज, कॉन्ट्रा एंट्री रिसीव, नाम कॉलम भले कैश अकाउंट का, लेकिन नाम कौन सा आएगा, बैंक का नाम आएगा। क्यों? क्योंकि बैंक देने वाली है, राइट। सिमिलरली बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाएंगे, लिखेंगे 2,000 रुपीज, कॉन्ट्रा एंट्री, और नाम बैंक का नहीं आएगा तो कौन आएगा, कैश का आएगा। क्या मतलब हुआ, इसकी टोपी उसके सर। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, कि मेरे अकाउंट में मेरा नाम नहीं आएगा, आपका नाम आएगा, और आपके अकाउंट जो बनाए हुए हैं वहां आपका अपना नाम नहीं आएगा, वहां मेरा नाम आएगा, राइट फ्रेंड्स। सो दिस इज कॉल्ड, इसकी टोपी उसके सर। आगे चलते हैं। ₹1,000 पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड रिमेनिंग 1,000 टेकन पर्सनल पर्पस। ओके, बोथ आर एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया तो एक्सपेंस है, तो कैश में दिखा दो 1,000। 2,000 हमने बैंक से निकाला था, दैट टाइम इट्स अ कॉन्ट्रा एंट्री, बट राइट नाउ वी आर एक्सपेंसिंग इट। सो इलेक्ट्रिसिटी बिल 1,000 का हो गया और बाकी मैंने पर्सनल पर्पस के लिए ले लिया, तो दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। तो ड्राइंग अकाउंट आल्सो 1,000 रुपीज टू बी सोल्ड। आफ्टर दैट गुड्स ऑफ 5,000 सोल्ड टू पार्थ को हमने 5,000 के गुड्स सोल्ड किए। ही इशूड अ चेक ऑफ नेसेसरी अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट द रेट ऑफ 10% कैश डिस्काउंट लेस करने के बाद उसने हमें चेक दिया, ठीक है। 5,000 का 10% क्या हो जाएगा, 500, और उस चेक को हमने इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो ऑब्वियसली इट्स अ बैंक ट्रांजैक्शन। सो बाय द नेम ऑफ सेल्स अकाउंट बैंक सेक्शन 4,500 और डिस्काउंट 500 हमने क्या कर दिया, पार्थ को दिया हुआ है। On the very next date 22 and 25, as we know that अगर हम चेक में को बैंक में आज जमा करते हैं तो 3 दिन के बाद हमारे अकाउंट में डिपॉजिट होता है, अगर अदर बैंक का चेक है। और अगर सिमिलर बैंक का चेक है तो विद इन अ डे वो हमारे अकाउंट में क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। अब ये 3 दिन के बाद जब बैंक से नोटिस हमें मिला दैट योर चेक इज डिसऑनर्ड विच इज गिवन बाय पार्थ। अब चेक जब डिसऑनर हुआ तो हमें पैसा तो मिला ही नहीं, हमने उसको पहले इनकम के रूप में ट्रीट कर दिया था। आज उस एंट्री को निकालने के लिए हम काट तो सकते नहीं इसको। सो व्हाट इज टू बी डन, इसकी अपोजिट इफेक्ट दी जाएगी। ऑन द अदर हैंड एक्सपेंस कॉलम में, सेम कॉलम में बैंक में 4,500 अब अगर चेक ही बाउंस हो गया है तो उस बंदे को डिस्काउंट भी देना, उसका डिस्काउंट भी क्या कर देंगे हम लोग, कैंसिल कर देंगे। कुल था मतलब ये कि हमारा और पार्ट का जो 5,000 का जो रिलेशन था सेलिंग का वो अब नहीं है, मतलब स्टिल वो ट्रांजेक्शन क्रेडिट माना जाएगा। हम उससे पैसे भी मांगते हैं, माल तो ले गया, वो मटेरियल ले गया, पैसे का चेक जो दिया था उसने वो चेक बाउंस हो गया, बट स्टिल वी डिमांड 5,000 रुपीज फ्रॉम हिम। ओके फ्रेंड्स, एंड नाउ कैश डिस्काउंट का जो ऑफर था उसके लिए क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, राइट फ्रेंड्स। नाउ ही हैज़ टू पे 5,000 पूरा, प्लस अगर कोई पेनल्टी लगी हुई है बैंकिंग की, नॉर्मली बैंक जब चेक डिसऑनर करती है तो हमें उसकी पेनल्टी पे करनी पड़ती है। सो अगर जो भी होगा, यहाँ ने शो ऑफ किया, हेयर विल नॉट शो दैट थिंग्स, बट इट इज़ पॉसिबल कि अगर बैंक ने चार्ज किया तो हम क्या करेंगे, अदर पार्टी के पास से कलेक्ट करेंगे। ओके, चेक ऑफ 6050 इशूड टू बंसरी टुवर्ड्स एन ओल्ड डेट। ओके, हमने चेक दिया, मतलब बैंक के कॉलम में चला जाएगा। तो उसका डेप्ट एक्चुअली 6,100 रुपीज़ का डेप्ट था, हमने 6050 दिया तो 50 रुपीज़ जो है हमारा क्या माना जाएगा, डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट कौन सा हो रहा है, तो रिसीव्ड डिस्काउंट। एक्चुअली हमें उनको 6,100 रुपीज़ पे करने थे, इंस्टेड ऑफ 6,100 वी हैव पेड 6050, सो 50 रुपीज़ दैट इज डिस्काउंट ऑफ आवर बिजनेस। और नाम क्या लिखेंगे,
जिसको हमने दिया, किसको दिया, बंसरी, तो बंसरी अकाउंट। उसके बाद गोपी हैज पेड 2000 बाई कैश। हम तो कौन है, हम तो नम्रता है। सो गोपी ने पे किया मतलब हमें पे किया होगा, राइट। सो यहाँ आ जाओ, गोपी अकाउंट 2000, एक्चुअली हम उससे मांगते थे 2040, जो 40 रुपीज़ कम दे रहा है वो उसका डिस्काउंट उसको मिल गया, लेकिन हमारा तो खर्च हो गया। हाँ, तो ये जो डिस्काउंट है ये डिस्काउंट पेड है। ऑन द क्रेडिट साइड डिस्काउंट रिसीव्ड, डेबिट साइड डिस्काउंट रिसीव्ड, पेड, सॉरी। After keeping cash on hand 5000 rupees, remaining balance is to be deposited in the bank. Fine. टोटल करने से पहले उसने कहा कि आपका जो बैलेंस है, कैश बैलेंस, वो अपने हाथ में 5000 रखना है। What do you mean 5000 is given in your hand? हाथ में रखना नहीं, it means कि if I am running a business, तो दिन भर में बहुत सारे ट्रांजैक्शन हुए होंगे, तो कुछ पैसा भी मेरे पास 25-50 हज़ार आया होगा, पर मुझे कल मॉर्निंग या फिर कल या फिर आज रात में या फिर कल मॉर्निंग में इमीडिएटली 5000 की ही रिक्वायरमेंट है कुल मिला करके, तो जो 20-25 हज़ार एक्स्ट्रा गले में पड़ा हुआ है, वही शुड आई केप्ट दैट मनी ऑन द बॉक्स। वो जो एक्स्ट्रा पैसे एक्स्ट्रा पड़े उसे मैं क्या कर दूंगा, बैंक में जाकर डिपॉजिट करवा दूंगा। सेम यहाँ का कि 5000 को हाथ में रखो, अपने अकाउंट में रखो, गले में, ड्रॉर बोलते हैं हम लोग, और रिमेनिंग जो बचा, रिमेनिंग कैसे फाइंड करोगे, तो आप कैश कॉलम में जाओ, टोटल मारो 24,500, फिर ये 5000 भी पहले से लिख दो क्योंकि 5000 चाहिए, और इसको इंक्लूड करके बाकी सब खर्चों को टोटल मारो, तो होता है 19,500। स्टिल यहाँ के कॉलम में आपको 5000 रुपीज़ कम दिखेगा। वो कौन से कॉलम में, कैश कॉलम में कम पड़ेगा, नाम कैश में, लेकिन नाम क्या, सॉरी कॉलम कैश का, लेकिन लिखा कहाँ जाएगा वो, बाय द नेम ऑफ बैंक के अकाउंट से। ठीक है, हमने बैंक में डिपॉजिट किया है तो नॉर्मली एंट्री क्या होनी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड, और वैसे भी क्रेडिट साइड ही है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 5000 बाय द नेम ऑफ बैंक अकाउंट, अब क्रेडिट तो कर दिया, डेबिट भी तो करना पड़ेगा ना। एक्चुअल ट्रांजैक्शन क्या हुआ होगा, हमने बैंक में पैसे जमा करवाए, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड। व्हाट वी हैव डन, हमने क्रेडिट की इफेक्ट दे दी, तो व्हाट इज अबाउट डेबिट इफेक्ट, सो बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पे जाकर लिखो 5000 रुपीज, कॉन्ट्रा एंट्री दिखाओ सी, और नाम क्या लिखो, कैश। तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल। नाउ क्लोज द बैंक अकाउंट। बैंक का टोटल मारते तो 21,300, यहाँ डेबिट में खर्च माइनस करते हैं तो लास्ट का बैलेंस आपका आ जाएगा 5050। कैसे करना, सिंपल है, 21,300 में से बैंक के सारे एक्सपेंस को माइनस करते जाओ, लास्ट में क्या मिलेगा आपको, 5050। एंड एज यू नो फ्रेंड्स, हम डिस्काउंट का सिर्फ टोटलिंग करते हैं, उसका डिफरेंस नहीं निकालते। तो आपको डिस्काउंट गिवन की बात करते हैं तो 840 का डिस्काउंट दिया है, और डिस्काउंट रिसीव की बात करते हैं तो हमने 550 का डिस्काउंट अभी तक लिया हुआ है। सो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट 3 कॉलम्स कैश बुक। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ साथ साथ बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलो, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।